Hi guys, welcome back to my channel, The Spice Connection. Today I have a special guest with me, as you can see. She's Nidhi and she's here with us today to show you some beautiful Ramadan recipes. Nidhi, do you want to say something? Assalamu alaikum friends. So thank you Pooja for inviting me on your channel. It's such a pleasure to be here. And without wasting any time, let's get started. So the first recipe that I have in my mind is keema puff. Oh, that sounds really interesting. Yes. So what all do we need for that? Yeah, so for keema puff, obviously we need keema. Okay. We have some frozen parathas that we're gonna use. We'll have onion, some peas, carrot, ginger garlic paste, cilantro, green chili, and some secret spices. You're right, yes. All right. So we'll begin with chopping these ingredients first. Yes. The onions, the carrots. Okay. Very good. So We we are have good. onion, we have carrot, we have green chilies, we have tomatoes. So let's start with keema. All right. First, let's make the stuffing. How much oil will we add? So we have 2 pounds keema. Okay. We're gonna add 2.5 tablespoons of oil. Okay. Any oil. Any oil, yes. Okay. Then Flame we'll keep at low, medium. medium should be fine. Okay. We'll add cumin. Yes, because it is said at medium heat you cook the best. Yes. Right. Yeah. So we'll wait And for it to this. splutter. Okay. So here I have used 1 medium-sized onion. Okay. And we'll cook it until it turns like Translucent. golden brown Yeah. or translucent. All Yeah. right. Yeah. Here we are. This is what we need. Between translucent and golden brown, we're gonna add 1 Ginger tablespoon garlic of paste. yes, 1 tablespoon. So this much? Yes. A little more? This is fine. Okay. So this is 2 pound keema that we are using, and the measurement is accordingly. But depending upon How much keema yes, you people can- want to use? yes. Okay. you can Adjust the spices yeah. and the onions Yeah. accordingly. Yes. Right. Okay, now we can see that ginger garlic is cooked. There's no raw smell coming. Right. So let's We'll add just the veggies. Yeah. Okay. We add the carrots first. Yeah. And again, the veggies are according to your choice. All right. We can add any veggies. Any veggies, but I generally prefer carrot and peas. All right. You want me to add the peas as well? So today we are using frozen peas. And if somebody is using like raw peas, they'll have to cook it a little more. Yeah. Okay. Do I add more? Yeah, that's it. Okay. We'll cover and cook it? Yeah. Okay. Veggies हो गए। Completely cook हो गया है या half cook करना है? ये अभी 70% कुक हो गया है और Okay. बाकी हम इसको कीमे के साथ Okay. कुक करेंगे। All right. तो अब हम इसमें ये कीमा डाल देते हैं। और फिर हम डालेंगे spices. स्पाइसेस यस। Okay. तो ये चिकन का कीमा है जिससे पकने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। हम इसमें कोई भी कीमा यूज कर कोई सकते भी हैं. कीमा यूज कर सकते हैं। जब हम इसमें गोट कीमा यूज करेंगे तो वो पकने में थोड़ा ज्यादा Time वक्त लगेगा, बट ये बहुत ही जल्दी कुक हो जाएगा। Right. तो अब हम इसमें स्पाइसेस डालते हैं। नमक. अब हम इसमें नमक डालते हैं। Salt तो according to taste डालेंगे. जैसे 1/2 टीस्पून Turmeric. 1/2 टीस्पून रेड चिली, Red chili भी according to taste डाल बिल्कुल. सकते हैं. और रेड चिली थोड़ा कम इसलिए डालेंगे बिकॉज हम इसमें ग्रीन चिली भी Okay. ऐड करने वाले हैं। ये 1/2 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर गया और ये 1/2 टीस्पून क्यूमिन। Okay. ये स्पाइसेस कुक करने के बाद आखिरी में हम इसमें गरम मसाला डालेंगे। Okay. तो हम तो आज यूज कर रहे हैं रेडी टू ईट पराठा Right. जो कवान या दीप के आते हैं वो. बिल्कुल। अगर हमारे पास रेडी टू ईट नहीं है
तो हम वीट और मैदा मिला के बना सकते हैं या सिर्फ मैदे का या सिर्फ वीट का बना सकते हैं? ये बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप इसे मैदे में बनाना चाहे वैसे बना सकते हैं, या थोड़ा मैदा अगर अवॉइड करना चाहते हैं तो कॉम्बिनेशन करके भी बना आटा सकते एंड हैं। मैदा का। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। ओके, तो इसे हम कवर कर देते हैं और पकने देते हैं। पकने देते हैं फॉर लाइक 5 to 7 मिनट्स। ओके, तो जब तक ये कीमा बन रहा है, लेट्स गो एंड मेक चना चाट। ऑलराइट। तो अब हम बना रहे हैं, जब तक कीमा बन रहा है हम बना रहे हैं काबुली चना चाट, राइट? उसके लिए हमने क्या लिया है? ये कितना चना है? ये 1 कप काबुली चना है जो Okay. मैंने पहले से सोक करके बॉईल कर। ऑलराइट। और फिर हम यूज करेंगे रोस्टेड क्यूमिन पाउडर और जीरा पाउडर, चाट मसाला, ये घर पे बना हुआ निमकी है, ओके, योगर्ट और दही, एंड दिस इज स्वीट टैमरिंड चटनी, मीठी चटनी इमली की। और हमें चाहिए अनियंस, टमेटो, ग्रीन चिली अकॉर्डिंग टू टेस्ट यूज करेंगे, और धनिया पत्ता, ओके, एंड काला नमक। ऑलराइट, तो शुरू करें? यस, तो पहले हम इसमें पानी डालते हैं। ओके, थोड़ा सा, थोड़ा 1 टेबलस्पून 1 जितना। टेबलस्पून, और बिल्कुल अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ओके, ये डालते हैं। टमाटो इसमें हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे ये काला भुना जीरा, ये भी 1 टीस्पून के करीब। 1 टीस्पून के करीब, और बिल्कुल आपके टेस्ट पर डिपेंड करता है। जैसे मुझे पर्सनली इसका टेस्ट बहुत इसका अच्छा स्मेल लगता है। बहुत अच्छा स्मेल, लगता है, हाँ, और yes. एक अलग ही फ्लेवर आता है Right. ये। तो मेरे किसी भी ऐसे चाट में वो तो नहीं है। Yes, exactly. ये एंड नॉट द मार्केट वाला जो मिलता है, एग्जैक्टली, ये तो घर पे बिल्कुल रोस्ट घर का। किया हुआ एंड देन बिल्कुल। पिसा हुआ। और अब ये चाट मसाला गया इसके अंदर, और हाफ टीस्पून के करीब। हाफ टी स्पून, और अब हम इसे मिक्स कर देते हैं ताकि जो फ्लेवर है ना, ये पूरे चना, प्याज और टोमेटो में अच्छे से मिक्स हो जाए। ओके, अब हम इसके ऊपर डालेंगे दही। दिस इज समथिंग वेरी न्यू टू मी कि चाट में ऐसे हम लोग स्पेशली जब वो पापड़ी चाट या सेव पूरी उस टाइप का खाते हैं तो हम दही डालते हैं। Right. मैं यूजुअली नहीं डालती हूँ दही, बट दिस इज समथिंग न्यू टू मी। फिर फास्ट रखने के बाद इस टाइप का चीज ना बहुत ऐसे क्रेविंग होता है, Right. चटपटा कुछ Exactly. तो And dahi also gives a calming effect and soothing effect. yes, है ना? yes, and क्योंकि आप especially when पूरा you're दिन fast fasting, करते yeah, हो। in summer Exactly. तो अच्छा है आपके लिए, आपकी हेल्थ के लिए भी। और ये टैमरिंड चटनी बिल्कुल खट्टा मीठा। ये हम मार्केट बॉट टैमरिंड चटनी यूज कर रहे हैं। ये घर पे भी अगर आप बना सकते हो बिल्कुल। तो यू कैन ऑल्सो मेक इट एट होम। और अब हम इसमें डालेंगे नमक, ये भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग। और हम इसमें रेगुलर नमक नहीं डाल रहे हैं क्योंकि काला नमक का अलग ही टेस्ट आता है, तो वी प्रेफर काला नमक चाट में जाए। Okay. आप चाहे तो रेगुलर नमक भी डाल सकते हैं, Yeah. या कॉम्बिनेशन करके भी डाल कॉम्बिनेशन भी सकते डाल हैं। सकते हैं। बिल्कुल। अब हम इसमें ग्रीन चिली डालते हैं टेस्ट के अकॉर्डिंग। ग्रीन चिली थोड़ा तीखा This हो already जाए। looks so tempting to me. एंड ये हरी हरी धनिया की पत्ती इसमें मिलकर Right. कुछ तो मैजिक लगे। ये गया। और इससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हम कुछ हेल्दी खा रहे हैं बिकॉज ऑफ द बिकॉज ये ग्रीन जो है ना, बस फीलिंग आती है और कुछ नहीं। और अब हम इसे ना हल्का सा क्रश कर दे ताकि ये ना जब भी आप बाइट लो तो एक फुल बाइट Bite में ना आ आए। जाए, बस Right. ये ऐसे मिक्सचर थोड़ा सा क्रंची सा लगे when you're लगे। taking a bite. और आप चाहे तो आप इसमें ना वो सेव जो आता है बारीक हाँ, सेव, yes. वो डाल सकते हैं, या चनाचूर डाल सकते हैं। Right. सब बस आप इसे जितना चटपटा कर दें उतना ही मजा आएगा इसमें। इसमें थोड़ा सा हम डालेंगे फिर से जीरा। Wow, this looks amazing. और जो आपके पास जो दही बची है इसे भी हम डाल देंगे थोड़ा सा।
गार्निशिंग के लिए। गार्निशिंग के लिए बिल्कुल। इसमें हम ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं। ग्रीन चटनी भी डाल सकते हैं बिल्कुल, बट क्योंकि हमने अभी इसमें दही और टैमरिंड चटनी डाल दिया है तो that's ज्यादा not- खट्टा खट्टा हो जाएगा, खट्टा ना हो right. जाए। तो अगर किसी को ज्यादा खट्टा पसंद है तो दे कैन डेफिनेटली यूज इट, बिल्कुल, राइट? आप इसमें लेमन भी डाल सकते हैं अगर आपको और खट्टा पसंद है, बट क्योंकि हमारा ये इमली का चटनी ऑलरेडी खट्टा है तो लेमन हम अवॉइड कर रहे हैं। ओके, दिस लुक्स अमेजिंग, दिस डेफिनेटली लुक्स अमेजिंग। तो खीमा ऑलमोस्ट हो चुका है। बिल्कुल। Okay, और इसमें अब- हम डालेंगे। हाँ, आप देखिए कि बड़े अच्छे तरह से ना ये कीमा और कैरेट जो है कुक हो गया। अब हम इसमें गरम मसाला डालकर इसे एक अच्छा सा इसे मिक्स करें। गरम मसाला भी टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। हमने डाला 1 टीस्पून 1 टीस्पून जितना हमने डाला है, और मेरे ख्याल में 1 टीस्पून काफी है, बिकॉज Enough है। हाँ, क्योंकि 2 पाउंड कीमा हमने लिया है। ओके, तो खीमा रेडी हो चुका है। अब हम इसको असेंबल करेंगे। हाँ। ओके, तो हम लोग अब फिलिंग तैयार करेंगे। हाँ। और फिर इसे हम बेक करेंगे। तो हम लोग ऐसे ही पराठा लेके इसे ऐसे हाफ कट कर लेंगे Alright. और इस हाफ में ये फिलिंग को और फिर बाकी हाफ से कवर करना बाकी है। हाफ से कवर करना है और थोड़ा ये साइड्स में बटर से ग्रीस कर हाँ। देना है। बटर या आप एग भी यूज कर सकते हैं ओके, ग्रीस करने के लिए। एग से थोड़ा और पफी होगा। पफी हो जाए, यस। और अब इसे ऊपर ऐसे रख दें, फिर Fork से फोर्क लेकर के साइड से प्रेस करते हैं राइट टू गिव दैट पफ शेप। puff shape and also to stick both the parathas. राइट, और अब वापस से बटर को लेके ग्रीस कर दें। दोनों साइड्स में या एक ही साइड? एक साइड। ओके, और अब जो ये हमारा पराठा है ये रेडी है। इसी तरह हम बाकी पफ भी बना के लेंगे। रेडी करेंगे। ये पफ्स अभी रेडी है और ये जाएंगे ओवन में फॉर 5 to 7 minutes। 5 to 7 minutes at 350 degrees Fahrenheit. इसे हम फ्राई भी कर सकते हैं फ्राई भी कर सकते हैं बिल्कुल, और Okay. बेक भी कर सकते हैं। और और अब क्योंकि बहुत ही अच्छी तरह से ये पफ जो है ना कुक हो गया है, अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसे बटर से थोड़ा ग्रीस कर लेते हैं। अब ये बन चुका है। You guys must try this recipe. अब हम बनाएंगे क्या? काले चने का चाट। तो इसको हमें रोस्ट करना है। हाँ, तो ये चना को पहले हमने फॉर 7 to 8 आवर्स के लिए भिगो दिया था, एंड देन इसे प्रेशर कुक किया है फॉर 3 whistles। ओके, और अब हम इसे कुक करेंगे पहले ऑयल, जिंजर गार्लिक, ऑनियन ये सब डाल करके, एंड Alright. देन इसका हम चाट बनाएंगे। ओके, अब हम इसमें डालेंगे 2 tablespoon जितना ऑयल। ओके। हम लोग यूज कर रहे हैं ऑलिव ऑयल। आप कोई भी ऑयल डाल सकते हो, राइट? बिल्कुल, ऑयल। सिर्फ आई थिंक जिस ऑयल में स्ट्रॉन्ग स्मेल है वो हम अवॉइड वो करेंगे, avoid लाइक करते हैं। मस्टर्ड ऑयल, सेसमे ऑयल, यस, है ना? वो फिर स्मेल खाने में आ जाता है। राइट। अब इसमें गया ये ऑनियन, इसे भी हम ट्रांसलूसेंट होने तक कुक करेंगे। ओके, इसमें हम जिंजर गार्लिक ऐड करेंगे थोड़ा सा, हाफ टी स्पून हाफ जितना। टी स्पून जितना, बिल्कुल फ्लेवर के लिए। ओके, तो हम 1 से 2 मिनट के लिए कुक कर लेते हैं। अब ये होते ही हम इसमें थोड़ा स्पाइसेस डालते हैं। ओके, तो
तो बॉईल करने के वक्त हमने इसमें सॉल्ट नहीं डाला है, तो अब हम इसमें सॉल्ट डालेंगे 1 टेबलस्पून जितना, और थोड़ा सा, और इसमें कोरिएंडर जाता है, थोड़ा सा क्यूमिन, रेड चिली टेस्ट के अकॉर्डिंग, टर्मरिक तो जाना ही चाहिए क्योंकि ये हेल्दी है। हेल्थ बेनिफिट्स तो अनकाउंटेबल है, तो ये तो जाना ही चाहिए क्योंकि आप सुबह से जब फास्ट कर रहे हो तो तो अब चीज़ ये कुक हो चुका है, हम इसमें चना डाल देते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो अब हम ये काले चने का जो चाट हम बनाएंगे उसके लिए हमने चना को कुक कर लिया है। अब इसमें हम क्या ऐड करेंगे निधि? अब हम इसमें पहले तो ऑनियंस डाल देते हैं, फिर हम इसमें क्यूकम्बर डालेंगे, और टमेटो डालेंगे, ऑल हेल्दी थिंग्स। फिर इसमें हम ग्रीन चिली डालेंगे, वो भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। इसमें बाकी हम नमक वगैरह नहीं डालेंगे क्योंकि हम ऑलरेडी डाल चुके हैं। और ये है अपना फेवरेट जीरा। ये तो चाट का आई थिंक मेन इंग्रेडिएंट है, और ये भी अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। जितना आपको स्ट्रॉन्ग उसका फ्लेवर चाहिए आप उस हिसाब से डालिए। अब हम इसे मिला लेंगे। हाँ, इसमें हम अब डालेंगे इमली का पल्प। ये वो मीठी इमली की चटनी नहीं है, ओके। ये रॉ टैमरिंड को सोक करके हमने पल्प निकाला है। इसे भी होल कर डालें। और अब चाट मसाला, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालेंगे, टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। और अब इसे हम सिलैंट्रो से गार्निश कर देते हैं। वाव। और आप इसमें अब चाहे तो बॉइल्ड आलू भी डाल सकते हैं। ओके, ये रेडी है अपना काला चने का चाट। ऑलराइट, सो ये काले चने का चाट इज रेडी। So thank you Nidhi for all that you showed us today. The Kabuli chana chaat, the black chana chaat and the keema puffs. हर एक डिश बहुत ही अमेजिंग था और मेरे को ये लगा कि इसमें बहुत ज्यादा मेहनत नहीं है, आप बहुत क्विकली एंड इजीली ये बना सकते हो। So thank you so much for taking out your time on a fast day और आने के लिए और हमें इतना अच्छा खाना बना के खिलाने के लिए। Thank you so much. You're welcome, and I hope you guys like this video. So I hope you guys like this video. We want you guys to try and let us know in comments. And please don't forget to like, share and subscribe to my friend's channel. Thank you so much, and yes, please guys do try these recipes. And don't forget to subscribe to my YouTube channel because Nidhi will be here again with another amazing recipe and that would be a surprise for all of you. So bye-bye. See you guys again. And until then, stay healthy, stay safe.